امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 13 روز سے جاری کارروائی روکنے کا حکم جمعے کو دیا گیا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملے ایک روز کے لیے روکے گئے ہیں یا جنگ بندی کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے ایران جنگ میں شدت لانے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے نجی طور پر خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس سے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے پاس موجود انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو جائیں گے۔ ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر کیے بغیر کہا کہ ایران پر حملوں کا نتیجہ توقعات کے برعکس نکلا ہے۔ امریکی حملے ایران کو اندر سے متحد ہونے اور ایرانی رہنماؤں کو بیرونی خطرات پر توجہ مرکوز رکھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس حملے جاری رکھنے اور اس کی شدت بڑھانے کا آپشن بھی ہے جس میں ہر چیز کو تباہ کیا جا سکتا ہے، مگر اسمارٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایران سے ڈیل کی جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا امریکی فوجی اڈوں پر 11 لڑاکا طیارے تباہ کرنے اور 15 روزہ جنگ کے دوران 200 امریکیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محبی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 17 ڈرون طیارے تباہ کیے گئے۔ ہینگر میں کھڑا ایک F-15 لڑاکا طیارہ، P-8 طیارہ، C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور R ری فیولنگ طیارے بھی ایرانی حملوں میں تباہ ہوئے۔ دعویٰ کیا کہ حملوں میں ریڈار اور فضائی دفاعی نظام اور 7 کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز تباہ کیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی دفاعی نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایران کے ڈرون اور میزائل کسی رکاوٹ کے بغیر اہداف تک پہنچ رہے ہیں۔ اور ایران نے اسرائیل کو جنگ میں پھر سے شمولیت پر خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ میں پھر سے شامل ہوا تو آفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ کو بھی خبردار کر دیا۔ بریگیڈیئر جنرل محبی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایک بمبار طیارہ برطانیہ کے فضائی اڈے سے اڑا۔ اگر انہوں نے امریکہ سے تعاون کیا تو وہ ہمارا جائز ہدف ہوں گے۔ بھارت میں طلبہ نے گودی میڈیا کی جھوٹ کی داستان اور پاکستانی ایجنٹ ہونے کے الزام کی حقیقت بتا دی۔ جنتر منتر میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران 23 روز سے بھوک ہڑتال کرنے والی بھارتی طالبہ نیہا بورا کا کہنا ہے کہ کشمیر میں چھروں پر خاموش رہے تو وہ چھرے دلی کے کناٹ پیلس تک پہنچ گئے ہیں۔ دلی فسادات میں اور کشمیر میں لوگوں کو پاکستان کا ایجنٹ کہا گیا تو عوام نے مان لیا۔ آج جب اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے طالبہ کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا تو پتہ لگا کہ وہ پہلے والا بھی جھوٹ تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی خوشحالی سرمایہ کاری، سیاحت اور درست قیادت سے مشروط ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام بالخصوص نوجوان نسل ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری، شعور اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ ویڈیو پیغام میں علیم خان نے کہا کہ انتخابات صرف حکومتوں کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل، خطے کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے تعین کا اہم موقع ہیں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مقامی سطح پر ریونیو کے لیے مؤثر ذرائع پیدا کیے جائیں۔ جب تک آزاد کشمیر اپنی معیشت کو مضبوط نہیں بنائے گا اور اپنی آمدن میں اضافہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ترقی کے منصوبوں اور عوامی فلاح کے خواب کو عملی شکل دینا ممکن نہیں ہوگا۔ کچھ بات کرتے ہیں موسم کی۔ لاہور میں چند روز کی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا اور دلکش موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، جہاں بچے، بوڑھے اور جوان سب گروپ تفریح میں مصروف ہیں۔ بتا رہی ہیں مزید ہیرا بطول اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پچھلے چند روز کی بارشوں کے بعد شہریوں نے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر کا رخ کر لیا۔ مختلف اقسام کے جانور سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور مرد سب لوگ موسم سے بھرپور لطف اندوز ہوتے نظر آئے اور ہر کوئی خوبصورت یادیں سمیٹنے میں مصروف دکھائی دیے۔ سب کا کہنا تھا کہ خوشگوار موسم میں اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا خوشگوار تجربہ ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہوں۔ بچے کہہ رہے کہ ہم نے زو جانا ہے، کہیں باہر جانا پھرنے کے لیے، تو پھر میں لے آئی۔ بچوں نے بہت ضد کی ہے، اس کی وجہ سے میں آج ان کو لے کر آیا ہوں ادھر زو میں۔ The Lahore view is very good and I've came from Glasgow, Scotland, and the Lahore Zoo has a lot of variety and the prices are very affordable for the tickets and it's really nice. میں نے بیئر دیکھ لیا ہے، میں نے ڈیئر دیکھ لیا ہے اور میں نے ٹرٹوائز دیکھ لیا ہے۔ مجھے وہاں پر آتے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، یہاں پر ٹائیگرز بھی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ لاہوریوں کو کافی دنوں بعد ایسا خوشگوار موسم ملا ہے، اس لیے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ اتوار کی چھٹی کا دن یادگار بنا
लिया जाए। हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जुलाई से एक नया स्पेल आ रहा है। इसमें कम बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब डिजास्टर के मुताबिक रवा मानसून सीजन में 29 अफराद जहाँ बहक और 230 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इस बारे में देखिए लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल खूब जमकर बरसा। पीडीएमए के मुताबिक गुजरावाला, रावलपिंडी और लाहौर डिवीजन में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। लाहौर में एक दिन के अंदर 263 बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे शहर के पोश इलाके भी डूब गए। घरों का कीमती सामान तबाह हो गया। नशेबी इलाकों में बनाए जाने वाले जेर जमीन वाटर टैंक भी फायदेमंद साबित न हो सके। लाहौर के मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस कई बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर फैली तैयार फसलें भी मुतासिर हुई। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक दरियाई सिंध में कालाबाग और तौंसा के मकाम पर पानी का बहाव 3,34,000 और चश्मा के मकाम पर 3,70,000 क्यूसिक है। दरियाई चनाब और दरियाई रावी में बल्लोकी और संधाई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से। पेशावर में इस वक्त मतलब जुज़वी तौर पर आवर आलूद है। धूप निकली है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा। इस तरह पीडीएमए ने बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खदशा भी जाहिर किया है। जी, वादे कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सूबे में मौसम की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दौरान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम खुश्क है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान जो शुमाली अजला हैं वहाँ पर भी मौसम गर्म है, लेकिन जनूबी और वस्ती अजला जो हैं वहाँ पर मौसम शदीद गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के बेशतर अजला में मौसम ज़्यादातर गर्म रहने की तवक्को है, जिनमें नुकंडी, वाशुक, दालबंदीन, खारान, नोशकी, सिब्बी और दीगर अजला शामिल हैं, जहाँ पर शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। ताहम ज़ोब, शरानी, बारखान, मुसाखेल, दुक्की, लोरलाई, ज़ियारत, थरनाई, किला सफला और इससे दीगर मुल्का इलाकों में जो है वहाँ पर बारिश का इम्कान है। तकरीबन ये 20 से ज़ायद अजला हैं जहाँ पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश होगी वहाँ पर कहीं पर गरज चमक और कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने जिन अजला में बारिश है वहाँ पर इंतबाह जारी किया है कि वहाँ पर जो अर्बन फ्लडिंग है उसका खदशा है, इसलिए लोग जो पानी वाले मुख्तलिफ नदी नाले जोहड़ हैं उनसे दूर रहें और ज़िला इंतज़ामिया भी ऐसे इंतज़ामात रखे ताकि आवाम को किसी नाखुशगवार सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाला ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। ऑयल टैंकर ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनार हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरिक़ वस्ता, मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे और जानी नुकसान पर शदीद तशवीश का इजहार। मशरिक़ वस्ता के तमाम फरीक़ैन से हमले फौरी रोकने, तनाज़ात के मुनसिफाना सियासी हल और अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया। हफ्तावार दुआया खिताब में पोप लियो का कहना था कि गज़ा मगरबी किनारे में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शहरी जानों के नुकसान पर शदीद तशवीश है। मुक़द्दस मकामात की हैसियत और एहतराम की खिलाफ वर्जी करने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों को मुस्तरद किया जाए और ऐसा सियासी हल निकाला जाए जिसमें सबको मुसावी हुकूक और एहतराम हासिल हो। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि दानिश स्कूल सिस्टम में तालीम बहुत महंगी है, जिसके बायस 15 साल में सिर्फ 40,000 बच्चे दाखिला ले सके। उन्होंने कहा कि पंजाब में कॉम्प्रिहेंसिव और पायलट स्कूल बने, वो कहाँ गए। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राना सिकंदर हयात का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट फर्क खत्म करने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ गए। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में अब तक औसतन 112% दाखिले हुए। उन्होंने कहा कि दानिश स्कूल सिस्टम में तालीम बहुत महंगी है, जिसके बायस 15 साल में सिर्फ 40,000 बच्चे दाखिला ले सके। उन्होंने कहा कि पंजाब में कम्प्रीहेंसिव और पायलट स्कूल बने, वो कहाँ गए? पहली दफा हमने सस्टेनेबल तरीके से ये सोचा कि बजाय हम कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल्स भी बने, पायलट स्कूल्स भी बने, किधर गए? दानिश स्कूल्स एक बड़ा कमाल प्रोजेक्ट, बट पिछले 15 साल में द स्टूडेंट्स नंबर हैज रीच्ड 40,000 ओनली बिकॉज एजुकेशन इज एक्सपेंसिव। नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे 3 लाख बच्चों से। वजीर तालीम का कहना है इस वक्त सूबे के 25% बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। हाई स्कूलों में पहुंचकर तालीम छोड़ने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा है। हमने एक रिपोर्ट शेयर की थी पहले साल के 15 लाख बच्चे गोस्ट निकले। इन फिनोमिनल लोगों ने जो आउटसोर्स हुए स्कूल्स, ये जो एमिनेंस बन रहे हैं, ऑन एवरेज 112% एनरोलमेंट इंक्रीज की। आप देखें कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे हमने कितने प्रोग्राम किए। अच्छा, 112% में 25% मिनिमम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में इनबिल्ट हमने मॉडल क्रिएट किया कि 5% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपने लाने ही लाने। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि आउटसोर्स स्कूलों को तालीम से महरूम 5% बच्चों के दाखिले का टारगेट दिया है। कैमरामैन हनान यूनस के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पूरी दुनिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी किरदार की मोतरफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी कांग्रेस के आला सतह के नुमाइंदे रेयान ज़ैनकी और माइकल बॉमगार्टनर ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और माशी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान इस वक्त इलाकाई बहरानों में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी कांग्रेस के वक्त का कहना था कि पाकिस्तान की अमन काविशों ने कई कीमती इंसानी जानों को बचाया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तामीर होने वाले नए अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम ही कराची को बनाएंगे, सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं, हम उन्हें संजीदगी से नहीं लेते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी और हमारे ये दोस्त शोशे छोड़ देते हैं और उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। आपने देखा कि वो सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ही आते हैं। यहाँ पे काम भी हो रहा है, इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं। हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमेशा वफाकी हुकूमत में रहे हैं, वहाँ से कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बताएं जो यहाँ पे लाए हों। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड कहने के बाद कहा जाता है कि जी ये सारी सूबे की ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपना काम कर रहे हैं। ईरानी ज़राए का बताना है कि अमेरिका ने हमलों में मौजूद वक्फा बरकरार रखा तो ईरान भी हमले रोक देगा। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने ईरानी ज़राए के हवाले से बताया है कि ईरानी ज़राए का कहना है कि ईरान इस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके रहेंगे। ईरान अमरीका के इरादों के बारे में बदस्तूर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ईरान का मौक़िफ़ अब भी हमले के जवाब में हमला है। अमरीकी हमले रुक जाते हैं तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा। ये पैगाम पहले ही अमरीका तक पहुँचा दिया गया है। हमलों में वक्फे के बारे में उम्मीद के मुकाबले में शकूक ज़्यादा हैं। ये वक्फा हकीकी नहीं बल्कि हिकमत अमली के तहत किया गया इक़दाम है।